ملک سے دہشت گردی ختم کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز سرگرم۔ خیبر پختونخوا میں 3 مختلف آپریشنز، 22 فتنہ خوارج جہنم واصل، 6 جوان وطن پر قربان۔ سیکیورٹی فورسز کا ٹانگ کے علاقے گل امام میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 9 خوارج جہنم واصل، 6 زخمی ہوئے۔ شمالی وزیرستان کی گئی دوسری کارروائی میں 10 خوارج مارے گئے، ہنگو کی تحصیل ٹول میں۔ سیکیورٹی فورسز نے چوکی پر خوارجیوں کا حملہ ناکام بنایا، 3 دہشت گرد ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں 6 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں نائک صوبیدار محمد خالد، حوالدار جدید علی، لانس نائک ولایت حسین شامل، لانس نائک صفت اللہ، لانس نائک رحمان اور سپاہی نظام الدین بھی شہید ہوئے۔ ISPR کے مطابق علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری، بہادر جوانوں کی قربانیاں دہشت گردوں کے خلاف قومی عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ صدر، وزیر اعظم اور دیگر رہنماؤں کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اب ایوان صدر سے اعتراضات، آپ مجھے بتائیں کہ اتفاق رائے کی ان تمام مرحلوں میں پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری لاہور کے اجلاس میں میاں صاحب کے گھر پر آصف علی زرداری بذات خود موجود تھے، بلاول صاحب خود موجود تھے۔ اب اس کے بعد اعتراضات لگانا سیدھی بات نہیں ہے کہ بدنیتی ہے۔ کس طرح کہا جائے کہ واقعی یہ اعتراضات قابل غور ہے؟ میں آپ کے ان علماء کرام کے اجتماع سے واضح طور پر ان کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اعتراضات پر غور و فکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں ان کو چمٹے سے پکڑنے کی بھی قابل نہیں سمجھتا۔ مدارس بل پر مولانا آن فائر، حکومت کو 1 دن کی مہلت، حکومت سیدھی نہ ہوئی تو کل اسرائیل مرد آباد ریلی میں حکمرانوں کا مرد آباد کرنے کا اعلان۔ مدرسوں کو انتہا پسندی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے، مگر ہم صبر سے کام لے رہے ہیں، ریاست سے تصادم کسی صورت نہیں چاہتے، تمام دینی مدارس کو دباؤ میں رکھا گیا ہے، ہم کہتے ہیں رجسٹریشن کراؤ، بینک اکاؤنٹ کھولو، یہ نہیں کراتے۔ مولانا فضل الرحمان کا نوشہرہ میں مدرسہ جامع عثمانیہ میں تقریب سے خطاب، چاہتے ہیں اس متفقہ قانون سازی پر اتفاق ہو اور بل بن جائے۔ 1 ماہ تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مذاکرات کیے، اب ایوان صدر سے اعتراض آنا درست نہیں، بندوق ڈنڈا تو نہیں اٹھایا، دلائل سے معاملات کو حل کیا، اب سامنا ہو گیا ہے تو ہم ڈٹ گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ہم تھک جائیں گے تو ایسا نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کر دیا۔ حکومت نے مولانا فضل الرحمان کے مطالبات مانتے ہوئے پارلیمنٹ سے بل منظور کرایا، مدارس کی رجسٹریشن میں چند قانونی پیچیدگیاں حائل ہیں، مدارس بل کو قانونی شکل دینے میں کچھ وقت لگے گا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے کہا کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مدارس رجسٹریشن کا پورا عمل رول بیک ہوگا، مدارس تعلیمی ادارے ہیں جو صرف وزارت تعلیم کے تحت آتے ہیں۔ فیصل آباد میں ہمیں ٹورنامنٹ کے لیے مسئلے کیا تھے کہ ہمارے پاس پریکٹس کے وینیو نہیں تھے، تو ہمیں وہاں پہ اویلیبلٹی کرنی ہے، باقی شہروں میں اویلیبلٹی کرنی ہے، ہماری خواہش ہے پشاور کا اسٹیڈیم ریڈی ہو جائے، باقی جو اسٹیڈیم ہیں ان کی رینوویشن کرنی ہے تاکہ ہم ان شہروں میں کرکٹ کرائیں جہاں پہ پہلے نہیں ہو رہی تھی۔ آج میٹنگ تھی، ابھی وہ پوسٹ پون ہو گئی ہے، جیسے ہی میٹنگ میں فائنلائز ہوں گی چیزیں فوری طور پہ آپ کو بتا دی جائیں گی۔ قوم کو مایوس نہیں کریں گے اور آنے والے دنوں میں جیسی چیزیں فائنل ہوں گی قوم کی توقعات سے بڑھ کر چیزیں انشاءاللہ۔ چیمپئنز ٹرافی پر قوم کو مایوس نہیں کریں گے، توقعات سے بڑھ کر چیزیں سامنے آئی ہیں، چیئرمین PCB کی قوم کو یقین دہانی، ICC میٹنگ میں ایسی کسی شرط پر بات نہیں کر سکتا جو قبل از وقت ہو، کوئی منفی بات کہہ کر معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتا، کچھ چیزیں میرے بس میں نہیں، چیمپئنز ٹرافی سے متعلق بہتر فیصلے ہوں گے، جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا عوام کے سامنے رکھیں گے، محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو۔ ادھر چیمپئنز ٹرافی پر بیک ڈور مذاکرات میں اہم پیش رفت، معاملات طے پانے کے قریب، جلد اعلان متوقع، ICC کی بورڈ میٹنگ ایک بار پھر بے نتیجہ ختم، پاکستان کے مطالبات پر بھارتی بورڈ کا جواب نہ آنے پر اجلاس ملتوی کیا گیا۔ مہنگائی کی شرح 3.5% پر آنے پر
वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। मुआशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। गुज़श्ता बरस के रवां हफ्ते की निस्बत महंगाई की शरह में 39% की बड़ी कमी आई। मुल्की तरक्की के सफ़र में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का कौम के नाम पैगाम, कहा बतौर खादिम पाकिस्तान अपने किए गए हर अहद पर कायम हूँ। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। रोजगार की फराहमी, मुल्की सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मजीद इजाफे के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। ऐसी पार्टी अपने आप को जमहूरी कहती है, फिर अगली पार्टियों को बैन करने की बातें करती है, फिर लोगों को गोलियां मरवाती है और एबीसी मुझे बुलाएगा और मैं जाऊंगा, मैं लानत भेजता हूं ऐसी एबीसी पे, और ऐसे बंदे पे एबीसी बुलाता है। फारिग है। इस पीपल्स पार्टी ने लाहौर के अंदर 77 में इस भुट्टो ने, जो अपने आप को हम शहीद कहते हैं उसको, इसने लोगों को मरवाया वहां पर। किसके लिए? पॉलिटिकल गेन्स, कुर्सी के लिए। फिर मॉडल टाउन में जो मुस्लिम लीग नून ने किया वो भी आपके सामने है। और अब मिलकर इन्होंने जो हरकत की है और ये हरकत करके नफरत पैदा करवा रहे हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला नहीं हुआ, अभी मुज़ाकरात होने हैं। महमूद गजनवी की तरह हमला करते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान, इल्जाम आयद किया पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर मुल्क में खाना जंगी कराना चाहते हैं। हुकूमत ने पीटीआई का मैंडेट चोरी किया हुआ है। लापता वर्कर्स से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हजारों कारकुन गिरफ्तार और जख्मी हैं। कारकुनों का खून रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू, गवर्नर फैसल करीम कुंडी को वेला मुंडा करार दे दिया। कहा गवर्नर की बुलाई एपीसी पर लानत भेजता हूं। GHQ गेट हमला केस, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज समेत 25 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने फैसला सुना दिया। CPO को तमाम मुल्जिम 10 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 9 मई मुकदमात में PTI की आदत कसूरवार करार। JIT रिपोर्ट लाहौर ATC में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक PTI की आदत ने 9 मई को आवाम को उकसाया। असद उमर, आजम सवाती और हाफिज फरत अब्बास समेत दीगर मुल्जिमान मुलव्वस हैं। हसास इदारा हमला केस में साहबजादा हामिद रजा समेत 160 PTI कारकुनों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले मजीद 13 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। सब क्या सारायां हैं, भाग कर नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफे के सवाल पर जवाब। खिताब के दौरान बार बार आईनी बेंच में शामिल ना होने का तज़किरा। बच्चे ना सिर्फ हमारा मुस्तकबिल हैं बल्कि हमारा हाल भी हैं। बच्चों को भी आज़ादी राय का हक हासिल है। जजेस को बताना चाहता हूं बच्चों के लिए इंसाफ किस कदर अहम है। अदालत में बच्चा पेश होता है तो बात का मौका नहीं दिया जाता। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, केसेस में बच्चों के वालिदैन को सुन लेते हैं। बच्चा अदालत में पेश हो तो उसकी बात भी सुननी चाहिए। इनकी इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, फ्यूल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नीचे आ रही है, और चीज़ें नीचे आ रही हैं और इनकी कीमतें ऊपर जा रही हैं। सो दिस काइंड ऑफ आर्बिट्राज इज़ नॉट राइट, विच मीन्स कि जो हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं दे नीड टू बिकम मोर इफेक्टिव, बिकॉज ये मिडल मैन को हम आर्बिट्राज नहीं करने देंगे। और ECC का ये बिल्कुल सेंट्रल एजेंडा होगा कि जहाँ भी कोताही हो रही है, अगर प्राइस कंट्रोल कमेटीज आर नॉट डूइंग देयर जॉब, देन वी विल टेक देम टू टास्क, बिकॉज दिस हैज टू गो डाउन टू द कॉमन मैन। वज़ीर खजाना का अशिया की कीमतों में कमी के लिए मिडल मैन के खिलाफ क्रैक डाउन का ऐलान। एतराफ़ किया आलमी मार्केट में दालों, अजनास, पोल्ट्री और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम। मकामी मार्केट में इन अशिया की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई। अब हुकूमत सख्त फैसले करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स ना लगाने का इंदिया भी दे दिया। धरना देने वाले मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सोचें। एहतजाज से 190 अरब रुपए योमिया का मुआशी नुकसान होता है। मोहम्मद औरंगजेब का कराची में ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। कहा, मल्टी नेशनल कंपनीज ने $2.2 अरब का मुनाफा बाहर भेजा। सेल्स टैक्स चोरी से बिजनेस मॉडल नहीं चल सकता।
वफाकी हुकूमत और IPPs के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला 17 IPPs के साथ मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। IPPs की बड़ी तादाद टेक एंड पे मोड पर बिजली देने पर राजी। 229 मेगावाट का IPPs ने टेक एंड पे की बुनियाद पर बिजली देने पर इत्तफाक कर लिया। 200 मेगावाट की निशात चूनिया IPP बोर्ड की हुकूमत से नजरसानी मुआहिदे की मंजूरी। नजरसानी मुआहिदे पर अमल दरामद 1 नवंबर 2024 से तसव्वुर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन, अहम तफसीलात सामने आ गई। मरीम नवाज कल सुबह 10 बजे खसूसी तैयारे से बीजिंग जाएंगी। वज़ीर आला के दौरे के दौरान सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक बसेस और ज़रूरी आलात की खरीदारी से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त मुतवक्के। चीनी कंपनियों से सोलर पैनल की फराहमी के हवाले से मुआहिदा किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजरांवाला की अदालत का 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह पर 16 अक्टूबर 2020 को पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्ज़ाम है। मुकदमे में खुर्रम दस्तगीर, इमरान खालिद और सलमान खालिद भट्ट पहले ही बरी हो चुके हैं। 26 नवंबर का एहतजाज, किसका बयानिया सच्चा? बुशरा बीबी या क़यादत का? PTI की तजादात भरी सियासत का एक और वाज़ेह सबूत। बुशरा बीबी का इस्लामाबाद पर नाकाम चढ़ाई के बाद शिकवा भरा नया बयानिया। तहरीक इंसाफ के बयानिए की जंग या हकायक की पर्दादारी, अवाम तज़ब्ज़ुब का शिकार। बुशरा बीबी और PTI लीडरशिप के बयानिए में वाज़ेह तजादात। डी चौक पर अकेली रह गई, PTI क़यादत कहाँ थी? बुशरा बीबी का क़यादत पर वार। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक बुशरा बीबी ने पठान गैरत का तज़किरा करके कौम को बांटने की कोशिश की। नस्ली तकसीम को कौमी हमीयत पर तरजीह, बुशरा बीबी का खतरनाक बयानिया करार। बुशरा बीबी कहती हैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो बानी PTI की अहलिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। कारकुनों ने बुशरा बीबी के भागने पर उनकी गाड़ी पर पत्थर और डंडे मारे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स को अपनी तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 5 अक्टूबर को फेडरेशन पर हमले के लिए 81 करोड़ रुपए खर्चा आया। 24 नवंबर की तीसरी नाकाम बगावत पर 2 अरब से जायद खर्च हुए। लोगों पर गोली चलाई जाए तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? रावलपिंडी इस्लामाबाद में पश्तो बोलने वालों को पुलिस उठा लेती है। शाहिद खाकान अब्बासी की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कन्वेनर अवाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा आज मुल्क में सियासी इंतशार है। हुक्मरान और अपोजिशन बात ना करे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? हमें मुल्क की मामलात सुलझाना है, अपोजिशन का रवैया उलझाने वाला है। जमात इस्लामी का डी चौक मुजाहरे में हलाकतों की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हुकूमत PTI रहनुमाओं की हलाकतों के बयान के पीछे छुप नहीं सकती। अगर 12 जानें भी गई हैं तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। फ़लस्तीन में 45,000 से जायद शहादतें हो चुकी। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। पंजाब के इलाके फूलनगर में जहरीली शराब से मजीद 3 अफराद जान बहक। हलाकतों की तादाद 7 हो गई। मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। जहरीली शराब की खरीद और फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज दुनिया शेरो अदब की मुमताज शख्सियात की शिरकत। 23 सेशंस और 12 किताबों की रोनमाई हुई। मारूफ अदाकार मुनव्वर सईद, मुस्तफ़ा कुरैशी और जावेद शेख ने स्टेज की रौनक बढ़ाई। मारूफ खिलाड़ी शाहिद आफरीदी, सलमान गेलानी ने गुफ्तगू की। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ की सदारत में आलमी मुशायरा हुआ। दुनिया का बेहतरीन यॉर्कर कराने वाला बॉलर कौन? ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर ब्रैटली ने बता दिया। कहा शोएब अख्तर क्रिकेट की तारीख के बेहतरीन यॉर्कर कराने वाले बॉलर हैं। और दिल पाकिस्तान से, मेरा दिल बदल दे। जुनैद जमशेद को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। जुनैद जमशेद की यादें और आवाज
آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ۔